Now today we are going to start our new module that is called CSV module, and how to write the data into the CSV file. In order to write a data into a CSV file, we have to use a module called CSV. We have to use module CSV. CSV is the module. Okay. Now, how to create a CSV file? The question is that, sir, how to create a CSV file? Now, question comes, sir, it's okay, but sir, what is CSV file? I do not know what is CSV file, sir. Okay, so question number 1, what is CSV? CSV means comma separated value file. Comma separated value file. It is a very prevalent file format to transfer the data from one application to another application. Okay, it is a very prevalent technique to carry the data from one application to another application of a different type. So this is a very lightweighted method, बहुत ही simple method है, बहुत ही small size file होती है, इसलिए data को carry करना आसान होता है, ठीक है ना. And every CSV file can easily open inside using Excel file. So every CSV file can be opened in Microsoft Excel. Remember. Okay, so how to create CSV files, sir? What are the steps? Okay, so answer. If you want to open any CSV file, the steps are as below. Number 1. So first of all, open a file where we would like to write data in W mode. Remember, in W mode. So we will open the file in W mode or A mode. Remember, we can open the data, we can open the file in either W mode or E mode. Then what we are supposed to do? First of all, actually this is okay, but before that we should have import the module, CSV. Okay, once module has been imported, open a file as below. I'm just going to show you this, how to go about it. Let's say, sir, I want to write a content into it, so I will write fout is equals to open and the name of the file, whatever. Let's say I'm writing my data.csv, comma, let's say W. Okay, so now this is my file where I want to write a data, but important thing is there, specific function is used that is called csv.writer. We have to use csv.writer. What is that function? csv.writer function. csv.writer function will throw you one writer object. Remember, csv.writer function will give you writer object. और writer object से आपको क्या फायदा होगा? ये writer object यूज होगा एक बार में एक रो को राइट करने के लिए या मल्टीपल रोज को राइट करने के लिए, ठीक है. सो राइटर ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा. लेट से हमने इस राइटर ऑब्जेक्ट का नाम शॉर्ट करके क्या कर दिया? WR कर दिया. ओके, ये राइटर ऑब्जेक्ट है हमारा. अगला काम क्या है हमारा अगला काम होगा कि हमको एक फंक्शन और यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड राइट रो फंक्शन. Now what the job of the write row? Write row function accept list, ठीक है. तो हम लिस्ट फॉर्मेट में डेटा को राइट कर देंगे. कैसे? WR.write_row और लिस्ट. अभी लिस्ट क्या है? We will get the data from the user, ठीक है. मतलब we will take the data from the user. take data और read data from user. कैसे डेटा हम लिखेंगे? कोई भी डेटा ले लो जो आपको सेव करना है. सपोज आपको वो बुक की इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो बुक की ले लो, आपको
एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो आप एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन ले लो, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप लो, उसकी एक लिस्ट बनाओ और फाइनली लिस्ट को यहाँ सेव कर दो। लेकिन ये कैसे करते हैं प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँ, लेकिन पहले हमको इसके फॉर्मेट्स और इसके स्टेप्स पता होना चाहिए। और जब आपका डेटा राइट हो जाए, सिंपली यू जस्ट क्लोज द फाइल, दैट इज fout.close, दैट हैज टू बी, ठीक है। And I will demonstrate you how to go about it, okay, and I will show you practically, I will show you. Just move on to the Python idle or anyone, hope that it is visible. So we will write first of all import CSV, okay. Now what I'm supposed to write, जो भी data you want to write, you have to write through list, okay na? Create a list and then write. That means you need to use a sequence to send the data as a one record, that I'm going to show you how to do that. Now open a file, fout is equals to open in bracket, here I'm going to write let's say my data dot CSV, extension must be CSV, wmod and writer, okay, we are going to use writer. What writer? CSV dot writer, CSV dot writer, and here I'm going to use nothing, okay, I'm not going to I'm going to pass here basically file object, and here is equals to, और मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा, एक राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके पास राइट करने की कैपेबिलिटी है। अब राइट तो मुझे करना है, WR इज रेडी, लेकिन मुझे पहले डेटा चाहिए जो मैं इस डेटा को राइट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट अपना एक डेटा यहाँ पर क्रिएट किया, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू लेट्स से 1001 एंड एम्प्लॉय नेम इज इक्वल्स टू save classes, okay, this is my data which I would like to write, and let's say city is Bangalore, city is equals to Bangalore. Let's write that. How to write? I'm going to create a record as a list. I will pass all the information, the number, the name and city. This I have done, and now my list has been ready. This is my line f w write wr is going to write the data. So here I will write wr dot write row, write row, and here you will pass the list rec. This is the way, and we will close it, and once the data has been written I will print a message, print data saved successfully, and here I will print close the file fout dot, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Is it visible to everyone? Clear to everyone? What we have done, the file where we have to write the data, we are linking that file, and then we are creating a object. This is the writer object we are creating and passing the file handle fout, okay, and then here I am passing, I'm creating the dummy data just for the purpose, and once the data has been created, हमने उस डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट में स्टोर कर लिया, क्योंकि जो राइट रो फंक्शन है वो हमेशा क्या एक्सेप्ट करता है, वो हमेशा लिस्ट एक्सेप्ट करता है, मतलब इसको सीक्वेंस चाहिए, कलेक्शन चाहिए, कलेक्शन के थ्रू डेटा जाता है अंदर, ओके, एंड देन वंस इट इज ओवर, एक रिकॉर्ड एक राइट हमारा राइट हो जाएगा। आई एम गोइंग टू रन दिस, आई एम गोइंग टू शो यू दिस। मैंने उसको रन कराया, ये रन हो गया, डेटा सेव सक्सेसफुली। लेट मी ओपन दिस फाइल। डेटा कहाँ सेव हुआ होगा, जहां पर ये सोर्स कोड की फाइल सेव है। मेरे सोर्स कोड की फाइल सेशन 2022 में सेव है, इसी फोल्डर में क्रिएट हुआ होगा। देन आई विल शो यू। ओपन द फाइल and here I will change it to all files, so all files will be visible। हाँ जी, देखो ये माई डेटा आ गया .csv लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्यों लिखा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, मतलब क्या है, हमारी CSV फाइल क्रिएट होगी। और ये देखो बाय डिफॉल्ट एक्सेल के फॉर्मेट में दिखा रहा है। हम इसे राइट क्लिक करके हम इसको डबल क्लिक करेंगे, एक्सेल में ओपन हो जाएगा, बट हम आई एम गोइंग टू ओपन इनसाइड इन अ नोटपैड, तो हम नोटपैड पे भी ओपन कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारा डेटा सेव हो गया। इज इट विजिबल टू एवरीवन हाउ वी हैव सेव द डेटा एज अ इन अ एक्सेल फाइल। आप कोई बोल सकता है सर ये तो नोटपैड फाइल है। नहीं, ये नोटपैड की फाइल नहीं है, एक्सेल की फाइल है या CSV फाइल। इसमें हर रिकॉर्ड के बाद एक कॉमा आएगा बाय डिफॉल्ट में, हम इसे चेंज कर सकते हैं। खैर, हम इसे एक्सेल में भी ओपन करके दिखाते हैं, डबल क्लिक।
हियर। फंडा क्लियर हो गया। हमने अपना एक रिकॉर्ड एक एक्सेल फाइल में और एक CSV फाइल में ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसमें कोई भी फंक्शन जो एक्सेल के वो अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू सेव द डेटा इन अ एक्सेल फाइल। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोशिश करो। We are not going to use this static information every time. We are supposed to take the information through the keyboard. So I'm going to ask user input, integer input. वाइल ट्रू का मतलब ये इनफाइनाइट लूप है जब तक कि यूजर यहाँ पर अदर देन वाई नहीं प्रिंट करेगा। सो द लूप विल गो। आई विल शो यू हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, मैं वो भी बताऊंगा। ड्रॉबैक क्या वो बताऊंगा, लेकिन पहले ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है मेरे को। ये कॉमा नहीं लगाया हमने, यहाँ पर 2 मैसेज दिए बिना कॉमा, इसलिए। ओके, लेट्स रन द कोड। इट इज आस्किंग मी, लेट्स से 1002, नेम अजय, सिटी कानपुर। ओके, data saved successfully. Do you wish to save more record? Press Y for save. अब मैंने क्या दिया यहाँ पर, स्मॉल y। ये देखो मुझसे फिर से रिकॉर्ड पूछने लगा 1003। ओके, लेट्स से विजय, अजय का भाई विजय। ओके, एंड सिटी, ही इज लिविंग इन लखनऊ, LUCK। ओके, समझ में आया? एंड देन एंटर। डू यू विश टू? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने N प्रेस किया, कैपिटल N भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे दो। कंडीशन कहाँ पर जाके चेक करेगा? अब मैंने क्या लिखा है CH में, N। अब देखो यहां पर CH में आ गया N नॉट इक्वल टू Y। कंडीशन क्या हुई? कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। तो ट्रू में आएगा, ब्रेक कर देगा, लूप से बाहर आ जाएगा, हमारा रिकॉर्ड सेव हो चुका है। इस तरीके से ये है, ये हमने एंटर किया, बाहर आ गया। देखो इस तरह से हमने, क्योंकि ये मैकेनिज्म तुम्हें इसलिए जरूरी है समझना, क्योंकि अभी तुम प्रोजेक्ट सीखोगे, प्रोजेक्ट्स में कैसे सेव करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, रेस्टोरेंट है, या यूजर मैनेजमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी हम नया सीखेंगे उसमें, तो हम कैसे इसके लिए मैकेनिज्म लगाएंगे कि वेयर द यूजर विल हैव अ चॉइस कि कब तक विश टू कंटिन्यू कैसे होता है। ये लॉजिक कर ले। अब हम अपनी एक्सेल की फाइल देखेंगे जाके।
व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माई एक्सेल फाइल, और उसमें एक ड्रॉबैक आया है, ठीक है, मुझे पता है, आप भी देखो, दिख रहा है ड्रॉबैक, कैन यू सी एक्स्ट्रा लाइन? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, दिस इज द Yes, sir. ड्रॉबैक, दिस इज द ड्रॉबैक. सो द प्रॉब्लम इज दैट कि जब भी आप एक्सेल की फाइल में डेटा सेव करते हो इस राइटर मेथड के थ्रू, राइट रो के थ्रू, तो ये क्या करती है, एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर क्रिएट करती है, यानी एक्स्ट्रा रो, यानी जब आप इसे काउंट करोगे तो बताएगा आपके पास 6 रिकॉर्ड सेव है, 1, दूसरा ब्लैंक, तीसरा करेक्ट रो, चौथा ब्लैंक, फिर पांचवा, फिर छठवां, तो यहाँ पर 6 रिकॉर्ड बताए. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, शायद हाँ ठीक है, 100, लेट्स से हमने 100 एम्प्लॉय नेम, ओके, लेट्स से टेस्ट 1 सिटी, टेस्ट सिटी 1, ओके, यस. Let me go and open my file. Is that visible now? तो तुम्हें समझ में आया कि कैसे हम एक लिस्ट को एक CSV फाइल पर सेंड करेंगे. Is that clear or not? Yes, sir.